Today, I have to cover two topics. First, I'll be covering the extremophiles, if you remember the contents, and then mycorrhizae, right? So let me share the screen. First, we start with the extremophiles. So I believe you can see my screen. Yes, sir. Okay. So what are the extremophiles? It's clear from the name that the extremophiles are those which live in extreme conditions. So these days, particularly considering the phenomena of climate change, everybody is talking of the extreme conditions. So when there is going to be extreme conditions, then we need to have uh, information, or we need to have sufficient knowledge about the extremophiles so that we can use them for the benefit of the society, for the benefit of the humanity at large, right? So, how we can define the extreme environment? Maria Spark, can you define the extreme environment? You can unmute your mic and define the extreme environment. Just try. Okay. Naveedur Rahman, can you define extreme environment? What do you think? What is the extreme environment? Yes, sir. So, what is extreme environment? What do you guess? Sir, very high temperature, very high pressure. Okay. अगर very high है तो very low extreme environment नहीं होगी. वे- वो भी होगा सर. Yes. So यही मैं आप लोगों से My, पूछना my चाहता था कि extreme environment is defined as the extreme if the environmental conditions are at one of the two extremes. Not only high, it may be high or may be low. For example, if you talk of the temperature, it may be too high temperature or too low temperature. If you talk of the moisture, it may be too much water or too much rains, or it may be complete drought, absolutely no rains. So extreme environment means extreme on any side, maybe higher side or maybe lower side, right? So you know this include uh, that may be pH, it is too acidic or it is too alkaline. It may be temperature, too low or too high temperature. We have already talked about this. Maybe salinity, mild salinity, too low salinity or very high salinity. Pressure, as Mr. Naveed told, pressure may be too high or too low. Nutrients, either too many nutrients, so many nutrients that they cause toxicity, or absolutely no nutrients, those cause the deficiency, right? So any of the extreme environment. Now, why we need to study this? The reason is, अभी हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट आपको क्विकली बताना चाह रहा हूँ कि आजकल everybody is talking of the climate change. Everybody says, oh, there is the phenomena of climate change. It is so important that even our Prime Minister last time when he addressed the UN General Assembly, he there spent some minutes on on emphasizing the need of of concentration on the climate change phenomena. So if we are asked to define the climate change phenomena, that the major indicator of the climate change is the extreme events. Extreme events means either there are too many rains or there are absolutely no rains. Either too dry conditions or flooding. So these are the extreme events. These are just few examples. So
we need to adapt to such conditions. For example, everybody is talking of the global warming. So when the temperature of the planet will increase, then we will have to develop such mechanisms that we can grow crops even under those high temperatures so that we can feed our population uh, successfully, right? So environments in which conditions select for extremely low microbial diversity. So सबसे बड़ा जो इसका असर होता है एक्सट्रीम कंडीशन का, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का, कि देयर इज एक्सट्रीमली लो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। वहां पे फिर सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं which are resistant to those or tolerant to those extreme conditions. The other microorganisms, those cannot survive over there. So as a result, there is low microbial diversity. Diversity, means different type of microorganisms. In general, there is huge microbial diversity on the planet. And the microbial diversity is so important that this year, 5th December was, when 5th December was celebrated as the World Soil Day, UNO this time selected the theme of protecting the soil biodiversity, right? That was the theme, how important it is to save the microorganisms which are present in the soil. So in general, at normal conditions, there is huge microbial diversity in the soil, but under extreme conditions, the microbial diversity becomes very low because only the microorganisms which can tolerate those extreme conditions, only those can survive, others they die. So as a result, the microbial diversity decreases. So such microorganisms which can grow under these extreme conditions, those are called as extremophiles. So the term extremophiles is applied to an organism that has successfully adapted to environments where it is difficult or impossible for other organisms to survive. So they have adapted to those extreme conditions. Those extreme conditions may be of any types. We have just discussed what we mean from the extreme conditions, whether it is too acidic conditions or too high or too alkaline conditions. Whatsoever the extreme conditions are, the microorganisms which have adapted to those extreme conditions where the other organisms are almost difficult or almost impossible to survive. Such microorganisms are called as extremophiles, which can grow in those extreme conditions. Actually, extreme environments harbor unique microorganisms with activities and metabolic strategies that are not only of scientific interest, but also have commercial potential. हम क्यों इनको पढ़ रहे हैं? Why we are studying extreme environments or the microorganisms which live in the extreme environments? Because in these extreme environments, the microorganisms, they have a wide scientific interest as well as they have wide commercial application. I'll explain that right now. Why these are important to study these extremophiles. Briefly मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जब कंडीशंस एक्सट्रीम की तरफ जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है कि उनसे, जैसे आजकल हम उनसे बेनिफिट ले रहे हैं, इसी वक्त उस वक्त भी उनसे हम बेनिफिट ले सकें. So what the microbial adaptation to amazing levels of stress.
सो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं कि आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, बट दे स्टिल कैन सर्वाइव ओवर देयर. Even in the Antarctica, they have been successful to get some spores of the microorganisms which were centuries old. And in the Antarctica, you know, the Antarctica is the continent which remains frozen. So these adaptations are of interest. What are those amazing levels of stresses? So why these are important to study these adaptations? These are important for development of remediation approaches for some contaminated sites, including acid mine drainage sites and radioactive waste sites. So acid mine drainage, I have many times told you that the acid mine, what is acid mine drainage? कि जहाँ से वो माइंस ले रहे होते हैं, जहाँ पे आयरन होता है और कापर होता है, तो वहाँ पे सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होती हैं. वो जो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होती हैं वो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं. जब बारिश होती है तो वो बारिश के साथ वो सल्फ्यूरिक एसिड मूव करके आगे चला जाता है ना. पानी जब जैसे पानी आगे जाता है तो वो भी आगे चला जाता है. तो जहाँ जहाँ पे वो पानी जाता है वहाँ पे एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशंस हो जाती हैं. वो सॉइल इस काबिल नहीं रहती कि वहाँ पे आप कुछ ग्रो कर सकें. तो फिर ऐसी सॉइल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए जो एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकें. सिमिलरली ऐसी साइट्स जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी होती है उनको रिक्लेम करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए फिर हमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए जो रेडियो एक्टिव साइट्स को, वेस्ट को, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी को टॉलरेट कर सकें. And for applications of novel enzymes adapted to temperature or pH extremes, we need such enzymes which are adapted to temperature or pH extremes. And you know that the enzymes are produced by microorganisms. So if the microorganisms are adapted to high temperature or pH extremes, then of course they will produce the enzymes which will have the ability to adapt to high temperature or pH extremes. You know that otherwise at high temperature the enzymes they are denatured. ठीक है? So ये भी इसकी एक commercial application है. And also for understanding evolutionary history and possible impacts of future climate change. So अगर हम evolution study करना चाहते हैं कि कैसे दुनिया शुरू हुई, उस वक्त टेम्परेचर हाई था, फिर वो कम हुआ और अब एक नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखने के लिए, जैसे आप लोगों ने इवन आप मैट्रिक की क्लासेस में, बल्कि उससे भी पहले शायद फॉसिल फ्यूल्स पढ़ते हैं, सॉरी क्या होती हैं वो, डायनासोर्स पढ़ते हैं कि कैसे वो सर्वाइव किए, क्या हुआ. एक एवोल्यूशन की थ्योरी है ना. ऑल्दो बीइंग मुस्लिम्स वी डोंट बिलीव इन दैट. हम तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जैसे इंसान को बनाया, लेकिन एवोल्यूशन की एक अपनी थ्योरी है कि कैसे वो चली. और फिर मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फ्यूचर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स को स्टडी करने के लिए, उनको टॉलरेट करने के लिए भी हमें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे अडेप्ट करती हैं, उन मैकेनिज्म्स को स्टडी करने की जरूरत है. Now, for example, what is interesting about cold adapted microorganisms? Such microorganisms which have adapted to cold conditions, to low temperature. What is interesting about them? So, these microorganisms synthesize cold adapted enzymes. So, it means they will produce such enzymes which have adapted to cold conditions, to low temperature. So if that process is to be catalyzed by enzymes, you will need not to heat that. It will
the enzyme has already adapted to the cold conditions, so it will catalyze that reaction at even low temperature. These enzymes can operate efficiently at low temperature, while at high temperature, the enzymes become unstable. These two properties of cold active enzymes make them suitable for biotechnical applications. So ये दो abilities जो हैं कि microorganisms low temperature पे at low temperature they can operate efficiently, and at high temperature they become unstable. These two properties of cold active enzymes make them suitable for biotechnological application. What are those biotechnological applications? So those are, for example, reactions carried out at low temperature require less energy input, which is a direct cost saving. जैसे मैंने अभी आपको पहले मिसाल दी थी, अगर आपके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो लो टेम्परेचर को अडेप्ट कर चुके हैं और आप कोई ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोसेस कर रही हैं जिसमें आपको पहले उस बायोकेमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए आपको उसको हीट करना पड़ता है, तब जाके वो एंजाइम्स काम करते हैं। अगर आपके पास ऐसे एंजाइम हैं जो लो टेम्परेचर पे ही एक्टिवली काम कर देते हैं, तो इसका मतलब है आपको वो जो हीटिंग के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी वो आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, आपको हीटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, so that can be a direct cost saving. Similarly, reactions can be stopped quite easily by simply raising the temperature. आप रिएक्शन को रोकना चाहते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, सो अदरवाइज you may have to add certain chemicals to stop that reaction. अब ऐसे होगा कि आप जस्ट उसका थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करें, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, so this is its industrial application. Low temperature enzymes that have been examined or used in industry include, मैं कुछ examples आपको देता हूँ कि ऐसे enzymes जो low temperature पे इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। For example, alpha amylase. Where it is used in bread making, in textiles, in brewing, and in detergents. Cellulase, it is used in textiles and the pulp and paper industries. Beta-galactosidase, it removes lactose from milk. Similarly, lipase, it is used in detergents and flavorings. Proteases, it is used in detergents and meat tenderizers, and xylanases is also used in bread making. So these are those enzymes which can operate efficiently at low temperature. So you need not to increase the temperature to have these benefits. So this was about the low temperature. Then the other extreme is high temperature environment. So what happens in the high temperature? Many mechanisms allow microorganisms to survive at temperatures that would normally denature proteins, cell membranes, and even genetic material. ठीक है? So इतना high temperature जिसमें आमतौर पे प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स की डीनेचर हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, and even the genetic material is damaged. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसे मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं जो हाई टेम्परेचर पे ये डैमेजेस उनमें नहीं होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। The key to enzyme function, actually, whether in cold or in hot environment, is the maintenance of an appropriate balance between molecular stability and structural flexibility. So the key to enzyme function क्या है कि उसमें एक बैलेंस रहे कि उसका मॉलिक्यूल स्टेबल रहे और उसकी स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल रहे।
that balance actually determines the function of enzymes. तो उसका मॉलिक्यूल स्टेबल भी रहे और उसकी स्ट्रक्चर में भी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत चेंज हो सके, लेकिन उसका मॉलिक्यूल स्टेबल रहे. So one general adaptive mechanism exhibited by thermophilic microorganisms is the production of chaperones. What are the chaperones? These are specialized thermostable proteins that help refold and restore other proteins to their functional form following thermal denaturation. ठीक है कि जब थर्मल डीनेचुरेशन हो जाती है हाई टेम्परेचर की वजह से वो एंजाइम या प्रोटीन्स डीनेचर होती हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैपेरोन्स प्रोड्यूस करते हैं. ये क्या है? ये थर्मोस्टेबल प्रोटीन्स हैं. ये जो प्रोटीन्स हैं ये उस एंजाइम्स को जो डीनेचर हो गया है हाई टेम्परेचर पे हेल्प करते हैं टू रीफोल्ड एंड रीस्टोर अदर प्रोटीन्स टू देयर फंक्शनल फॉर्म, कि वो दोबारा से अपनी फंक्शनल फॉर्म में आ जाएं जो डीनेचर हो गई थी. तो ये काम ये स्पेशल प्रोटीन्स जो हैं चैपेरोन्स ये करती हैं. Then in addition, there are microbe specific adaptations to increase protein stability at high temperature. कुछ ऐसी adaptations हैं जो कुछ खास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं. स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक अडेप्टेशन है वो दूसरे में नहीं पाई जा रही, जो दूसरे में पाई जा रही है वो इसमें नहीं पाई जा रही. So these are microbe specific adaptations, which actually increase the protein stability at high temperature. What are those? Number one, an increased number of disulfide bridges. अगर आपने जो बायोकेमिस्ट्री का कोर्स पढ़ा था बीएस की क्लास में वो याद हो तो उसमें आपने देखा था उसमें दो सल्फर के मॉलिक्यूल्स उनके दरमियान एक ब्रिज बनता है. प्रोटीन की स्ट्रक्चर, जब आपने प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उस वक्त आपने ये पढ़ा था उसकी सेकेंडरी प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर कि कैसे जो दो सल्फर बॉन्ड्स होते हैं उनके दरमियान सल्फर के दरमियान बॉन्ड बनता है जिसे हम डाइसल्फाइड ब्रिज कहते हैं. ठीक है. सो इसमें वो नंबर ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस दोज इंक्रीज. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द अडैप्टेशन. सेकंड, इंक्रीज interactions among aromatic peptides. जो aromatic peptides होते हैं उनके दरमियान interactions बढ़ जाती हैं. Aromatic, you know, I need not to tell you what are the aromatic and what are the peptides. So जो ring shaped होती हैं amino acids की structure उनमें जो peptide bond होता है उनके दरमियान interactions aromatic peptides के दरमियान interactions बढ़ जाती हैं. And there is increased hydrogen bonding among peptides. Peptide bonds के दरमियान hydrogen bonding बढ़ जाती है. So remember now, अब मैं एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता हूँ कि what are the microbial specific adaptations to increase protein stability at high temperature, or how the microorganisms adapt themselves at high temperature. So these are the answers. These are the 3 points. Increased number of disulfide bridges, increased interactions among aromatic peptides, and increased hydrogen bonding among peptides. In terms of cell membranes, most hyperthermophiles belong to the archaea. मैंने जब आर्किया की बात की थी तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था ये कि जनरली जो आर्किया होते हैं ये एक्सट्रीमोफाइल्स इसमें शामिल किए जाते हैं. जनरली जो एक्सट्रीमोफाइल्स हैं वो आर्किया ग्रुप से बिलोंग करते हैं. सो अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें आप तो मोस्ट hyperthermophiles which can grow at very high temperature, those are placed in archaea group. All hyperthermophiles
produce a unique enzyme which is called DNA guidase. This guidase acts to induce positive supercoils in DNA, theoretically providing considerable heat stability. So ये DNA guidase क्या करता है? ये DNA में पॉजिटिव सुपर कॉइल्स प्रोड्यूस कर देता है थ्योरेटिकली, जो कि थ्योरेटिकली उसमें फिर हीट स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, उस DNA को फिर डैमेज नहीं होने देते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर. There are numerous biotechnological applications for enzymes isolated from thermophilic microorganisms. पहले हमने बात की थी लो टेम्परेचर की बेनिफिट्स की. अब हम बात कर रहे हैं कि there are numerous biotechnological applications for enzymes isolated from thermophilic microorganisms. वो क्या है? So those are, the prime example is the thermostable DNA polymerase used in PCR. पॉलीमरेज जो है, ये जो आप DNA की कॉपीज करते हैं PCR मशीन के, PCR मशीन मेरे ख्याल में आप सब लोगों ने देखी होगी. अब BSc की में भी आपने हमारी लैब विजिट की थी, उसमें आपके कोर्स का हिस्सा है, तो हमारी लैब में ये PCR मशीन पड़ी हुई है. पॉलीसाइक्लिक चेन रिएक्शन होता है एक्चुअली, जिसमें DNA की कॉपीज बनाई जाती है ना, उसमें टेम्परेचर हाई होता है, फिर लो होता है, फिर हाई होता है, फिर लो होता है, इस तरह से साइकिल्स चलते हैं जिनसे DNA की कॉपीज बनती हैं. ठीक है. सो दिस इज द वन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन of the enzymes which are produced by thermophilic microorganisms. जब उसका टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, तो अगर वो एंजाइम थर्मली स्टेबल नहीं है तो वो काम नहीं करेगा वहां पे. ठीक है. Organisms with growth temperature optima between 45 and 80 degree centigrade are called thermophiles. So 45 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छा ग्रो करते हैं, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 45 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक है. दोज आर कॉल्ड एज थर्मोफाइल्स. लेकिन जो इससे भी ज्यादा 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पे भी ग्रो कर सकते हैं, उनको हम हाइपर थर्मोफाइल्स कहते हैं. ठीक है. सो हाइपर थर्मोफाइल्स, their optimum temperature for growth is more than 80 degrees centigrade. And these organisms inhabit hot environments up to and including boiling hot springs. Even जो boiling hot springs हैं, वहां पर भी ये ग्रो कर सकते हैं. हत्ता के जो अंडर सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, ये वहां पे भी मौजूद होते हैं. समुद्र के नीचे ऐसी बहुत सारी, क्योंकि जमीन के नीचे अर्थ में नीचे बहुत सारी गैसेस हैं, ऐसे ही समुद्र में जो पानी है, पानी के नीचे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत सारी गैसेस हैं. तो बास का तो गैसेस कहीं से इरप्ट होती हैं, वहां से बाहर निकलती हैं, वो हाई, वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है. वो जो जहां से वो निकल रही होती है उसको हम हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं. ठीक है. सो हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं, वहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है. सो जो हाइपरथर्मोफाइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, these can be present even at such conditions. Means, in other words, you can say that the hyperthermophiles can be present even at temperature above 100 degrees centigrade. Extremophiles have evolved to grow optimally under very hot or very cold conditions. ठीक है. सो जैसे हमने डिफाइन किया था कि एक्सट्रीमोफाइल का मतलब ये है कि वो ईदर टू हाई और टू लो, जो भी एक्सट्रीम हो उस पे वो ग्रो कर सकता है. सो एक्सट्रीमोफाइल्स कैन ग्रो अंडर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड कंडीशंस. ये हमने टेम्परेचर की बात की. अब हम बात करते हैं हाई सोल्यूट की, हाई सैलिनिटी की. ठीक है. सो इफ हाई सोल्यूट, some microorganisms
which are called as halophiles, they have evolved to grow best at reduced water potential, and some extreme halophiles even require high levels of salts for growth. पहले तो एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इससे। जितनी साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होगा, मोर नेगेटिव होगा, कम होगा। जितना वाटर पोटेंशियल हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, उनमें जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है ड्यू टू साल्ट्स, ये साल्ट्स के बढ़ने के साथ कम होता है। हायर द साल्ट्स लेसर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सो वाटर पोटेंशियल बनता है इन सब पोटेंशियल्स के मिलने से। तो जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो जाता है तो इसका मतलब है वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। इसीलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना है जो सैलिनिटी में होता है वो यही होता है कि जब बाहर सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, मींस बाहर वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, तो पौधे के अंदर से सारा पानी निकल के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से पौधे मर जाते हैं। ठीक है, सिमिलर इज द केस विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनमें वो अगर वो स्पेसिफिक अडेप्टेशन कोई नहीं है जिसकी वजह से वो अपना अंदर का वाटर पोटेंशियल कम होने से बचा सकें, ठीक है, तो वो मर जाएंगे। सो उनमें कोई ना कोई ऐसी अडेप्टेशन चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी अंदर के वाटर पोटेंशियल को ज्यादा नेगेटिव ना होने दें। ठीक है, क्योंकि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, okay, so some microorganisms, halophiles, have evolved to grow best at reduced water potential. So halophiles वो हैं जो अच्छा ग्रो करते हैं एट रिड्यूस्ड वाटर पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो ही अच्छा लो वाटर पोटेंशियल पे करते हैं, एंड सम एक्सट्रीम halophiles even require high levels of salts for growth। और कुछ एक्सट्रीम halophiles ऐसे हैं कि वो उन्हें साल्ट्स की हाई कंसंट्रेशन चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। कुछ तो हैं जो अच्छा ग्रो कर सकते हैं halophiles हैं, और कुछ एक्सट्रीम halophiles हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको हाई साल्ट्स मिलें। सो similarly, halotolerant is another term. These are the organisms which can tolerate some reduction in the water activity of the environment, but generally grow best in the absence of the added solute. So, halophile और halotolerant में फर्क को समझें। Halophiles वो हैं जो लो वाटर पोटेंशियल पे ग्रो कर सकते हैं, और एक्सट्रीम halophiles वो हैं जिनको हाई लेवल ऑफ साल्ट्स चाहिए। हेलोटॉलरेंट वो हैं जो बेस्ट ग्रो कर सकते हैं, बेस्ट ग्रो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ साल्ट्स, लेकिन इनमें ये एबिलिटी भी होती है कि अगर वहां पे साल्ट्स ऐड हो जाएं जिनकी वजह से वाटर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए तो ये कुछ हद तक उसको टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, water activity becomes limiting to an organism when the dissolved solute concentration in its environment increases. So मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब किसी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, वहां पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। जब वाटर पोटेंशियल कम होता है तो क्या होता है, तो जो ऑर्गेनिज्म के बाहर वाटर पोटेंशियल कम हो गया, अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर से पानी बाहर निकल आता है। ठीक है, लिहाजा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। वाटर एक्टिविटी बिकम्स लिमिटिंग टू एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को पानी मिलना कम हो जाता है when the dissolved solute concentration in its environment increases, क्योंकि बाहर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से बाहर वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, लिहाजा पानी की मूवमेंट टुवर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
कम हो जाती है। ठीक है, टू काउंटरएक्ट दिस सिचुएशन, अब इस सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए, काउंटरएक्ट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस और एक्यूमुलेट इंट्रासेलुलर कंपैटिबल सॉल्यूट्स, वो अपने सेल्स में कंपैटिबल सॉल्यूट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिक साल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पोटेशियम है, ग्लिसरॉल है, प्रोलीन है, ग्लाइसिन बीटेन है, ये सारी चीजें वो अपने बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। जब वो अपने बॉडी में ये चीजें, ये साल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर क्या होता है कि उनके बॉडी के अंदर भी वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। जब वाटर पोटेंशियल उनके बॉडी में भी कम हो जाता है, तो फिर अंदर का पानी बाहर नहीं निकलता है। इस तरह से सेल का वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव मेंटेन रहता है। ठीक है, दैट मेंटेन्स द सेल इन पॉजिटिव वाटर बैलेंस। ये बात हमने की साल्ट्स। अब हम बात करें लो पीएच और एसिडिक एनवायरनमेंट की। Some organisms have evolved to grow best at low or high pH, but most organisms grow best between pH 6 and 8. So mostly 6 and 8 pH के दरमियान बेस्ट ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत लो या बहुत हाई pH पे भी ग्रो कर सकते हैं। The internal pH of a cell, you remember this is the rule that the internal pH of a cell must stay relatively close to neutral, even though the external pH is highly acidic or basic. So बाहर की pH जितनी मर्जी एसिडिक और बेसिक हो, सेल को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर की pH, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर की pH न्यूट्रल और नियर न्यूट्रल रखनी होती है। ठीक है, सो फिर उनको कोई ना कोई मैकेनिज्म अडॉप्ट करना पड़ता है। जो एसिडोफाइल्स हैं, ये क्या करते हैं, दे सर्वाइव बाय मॉडिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये अपनी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होती है ड्यू टू एसिडिक कंडीशन। कैसे करते हैं? The acidophils maintain a neutral cytoplasmic pH by actively transporting H ions out of the cell. अब यहाँ पे समझने की बात है, जब हम कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशंस हैं, तो एसिडोफाइल्स क्या करते हैं? जब हम एक्सट्रीम एसिड कंडीशंस कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे H आयंस ज्यादा होंगे। ठीक है, जब H आयंस ज्यादा होंगे तो यू नो कि केमिस्ट्री का असूल है, डिफ्यूजन का प्रिंसिपल है कि मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो जब बाहर H आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर तो नियर न्यूट्रल pH रखनी है, तो क्या होता है, अंदर H आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है, बाहर ज्यादा होती है, तो H आयंस मूव करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो वहां पे जाके ये pH को रिड्यूस कर देते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि ये जो H आयंस इसके अंदर जाते हैं, उनको एक्टिवली बाहर भेजता रहता है, बाहर ट्रांसपोर्ट करता रहता है अपनी बॉडी से, और इस तरह से अपने साइटोप्लाज्म की pH को वो न्यूट्रल रखता है। एंड सेम इज द ट्रू फॉर एल्कलोफाइल्स। अगर हाई pH है तो OH आयंस अंदर जाएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये मैकेनिज्म होगा कि वो हाई OH आयंस जो वहां पे अंदर जा रहे होंगे, उनको बाहर सेल से बाहर भेजता रहता है, ताकि उसके साइटोप्लाज्म की pH न्यूट्रल और नियर न्यूट्रल रहे। ठीक है, सो इस मैकेनिज्म के थ्रू वो एसिड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं और वहां पे वो अडेप्ट कर जाते हैं। सिमिलरली हाई प्रेशर, अब ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? डीप सी में, समुद्र में नीचे, क्योंकि उसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना, पानी होता है बहुत ज्यादा, तो उसका प्रेशर होता है। एंड देयर आर सच ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बैरोफाइल्स कहते हैं, which can tolerate up to 100 more than 1000 बार प्रेशर, हत्ता के 1000 बार से ज्यादा प्रेशर वो अडेप्ट कर सकते हैं।
सकते हैं। एंड टू सम एक्सटेंट इनका मैकेनिज्म अभी मैं बात करूंगा। जो कोल्ड कंडीशंस में जो आइस के नीचे रहते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ मैकेनिज्म्स इनमें फिर कॉमन होते हैं। आल्सो साइक्रोफिलिक सर्वाइव एट लो टेम्परेचर, और जो साइक्रोफिलिक होती हैं वो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो वहां पे लो टेम्परेचर की वजह से भी डबल, एक तो प्रेशर होता है उनपे, दूसरा टेम्परेचर लो होता है। तो जो साइक्रोफिलिक हैं, टेम्परेचर के हिसाब से 3 कैटेगरीज होती हैं, साइक्रोफिलिक, मीजोफिलिक एंड थर्मोफिलिक, और आज हमने एक चौथी भी बल्कि पढ़ी है जो हाइपर थर्मोफाइल्स होती है। ठीक है, सो जो साइक्लोफिलिक हैं दे कैन सर्वाइव एट लो टेम्परेचर, दे लिव इन डेप्थ अडेप्टेड टू डार्कनेस। सो ये डेप्थ में जो रहते हैं और डार्कनेस को अडेप्ट कर जाते हैं। दे हैव लॉन्ग, अब क्या मैकेनिज्म होता है इनमें, दे हैव लॉन्ग चेन पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन देयर मेम्ब्रेन। इनकी मेम्ब्रेन में लॉन्ग चेन पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो लो टेम्परेचर की वजह से डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक कंडीशन हो सकती है, एक एक्सट्रीम कंडीशन की हमने बात की थी, न्यूट्रिएंट्स की। जो अल्ट्रा प्योर वाटर होता है, बहुत ज्यादा प्योर वाटर जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं हो, तो वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर ग्रो करना शुरू कर दें तो हमारी इंडस्ट्री तबाह हो सकती है, मतलब इंडस्ट्री डैमेज हो सकती है very badly if the contamination of ultra pure water by microorganisms can be devastating to industries like semiconductor, medical and other industries. For example, आजकल ये कोरोना वैक्सीन ही बना रहे हैं। अब वो जाहिर है वो प्योर कंडीशंस में बना रहे हैं, एक खास वायरस ही है जिसे वो ग्रो कर रही हैं, और उसमें उसको कोई प्रॉपर मीडिया दे रहे होंगे, उसके लिए उन्हें अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए होगा। अगर वो अल्ट्रा प्योर वाटर में भी कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाए तो वो कोरोना वैक्सीन क्या होती है एक्चुअली, वैक्सीन उसी और जो पैथोजन होता है, वीकेंड पैथोजन होता है आप कह सकते हैं, वो इतना वीक कर दिया जाता है कि वो डिजीज काज नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो आपके बॉडी में इंजेक्ट करती हैं तो उसके रिस्पॉन्स में आपके बॉडी में उसके एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो कि डिफेंस का काम करते हैं। सो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट यही होता है। और अगर उस वैक्सीन को बनाते हुए या कोई सिरप बना रहे हैं, फर्ज करें कोई मेडिकल सिरप बना रहे हैं, खांसी का शरबत बना रहे हैं, खांसी का शरबत बनाते हुए जाहिर है वो अल्ट्रा प्योर वाटर यूज करते हैं, उसमें कोई अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आने देते। और अगर उसमें कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाएं जो अडेप्ट कर जाते हैं तो अल्ट्रा प्योर वाटर और वो पैथोजन है, तो वो उनकी वो सारा सिरप तो तबाह हो जाएगा ना, वो तो नहीं फिर दे सकेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे। सो नो न्यूट्रिएंट और अल्ट्रा प्योर वाटर को अगर कोई ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करके वहां पे भी ग्रो कर जाते हैं तो दैट इज आल्सो एन एक्सट्रीम कंडीशन एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द इंडस्ट्री। सो very few organisms can survive in ultra pure water. So बहुत कम हैं जो ultra pure water में survive कर सकते हैं। So this is all about the extreme conditions. किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, इससे पहले कि मैं अगले चैप्टर पे चलूं, माइक्रोराइज। Anybody can unmute his mic and ask the question. Okay, if you have no question, then we move to the next topic. Okay, so you can see my screen. Yes, sir. Okay, so I have shared the next chapter. This is the last chapter that I am going to cover. That is the mycorrhizal symbiosis.
इसकी बेसिक चीजें I have already discussed when discussing PGPR और बायो फर्टिलाइजर। तो बहुत सारी चीजें, या जब हम पहला चैप्टर बिल्कुल राइजोस्फीयर वाला स्टडी कर रहे थे, उस वक्त इसके बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई थी। और उस वक्त मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे इसकी डिटेल इसलिए नहीं बता रहा कि हम इस पे एक इंडिपेंडेंट चैप्टर पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट माइकोराइजल सिम्बायोसिस। So I believe you know the basics कि mycorrhizae होती क्या है। So mycorrhizal symbiosis, you know, we have studied the interaction in this course. The interactions, the symbiotic interaction means which is beneficial for both partners, right? So what is mycorrhizal symbiosis? Mycorrhizae actually refers to a variety of symbiotic association between plants and fungi that colonize the cortical tissue of roots during periods of active plant growth. So ये roots पे colonize कर जाती हैं ये fungi, और वहाँ पे plant के साथ association बनाती हैं, और इस association को हम mycorrhizal symbiosis कहते हैं, जो दोनों के लिए beneficial है। कैसे beneficial है ये अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे beneficial है। So इस एसोसिएशन में एक्चुअली दो पार्टनर्स होते हैं। This symbiotic association involves two partners. One is mycobiont, which is fungi, and the other is photobiont, which is plant. ठीक है? So mycorrhizal symbiosis में दो पार्टनर्स होते हैं। One is mycobiont, the fungi, another is the photobiont, the plant. So mycobiont or fungi obtains carbohydrates, vitamins, and spore germination is stimulated by root exudates. So this is the benefit that fungi gets from the plant, that it obtains carbohydrates, vitamins, and its spore germination, I mean the fungal spore germination, is stimulated by root exudates. So these are the benefits that these get from plants. And up to 20% of the host's fixed carbon can be captured by the fungus. So host, what is the host? It is the plant. So plant जो कार्बन फिक्स कर रहा है, कौन सी कार्बन फिक्स कर रहा है? जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जो उसे कार्बोहाइड्रेट्स बन रही है, उनका 20% तक फंजाई जो है ये यूज कर सकती है, ले सकती है। अप टू 20% of the host's fixed carbon can be captured by fungus. और प्लांट क्या फायदा लेता है? प्लांट obtains benefits from increased mineral and nutrient uptake. So रूट्स के ऊपर हमने अभी डिफाइन किया था, जब ये फंजाई ग्रो करती है माइकोराइजी, तो उससे क्या होता है? फंजाई के ग्रो करने से रूट का एरिया बढ़ जाता है। जब रूट का एरिया जो वो एक्सप्लोर कर रही होती हैं वो बढ़ जाता है, तो देन इट कैन हैव मोर न्यूट्रिएंट, एक्सप्लोर मोर एरिया, so it can have more mineral or nutrient uptake, more water uptake, and also protection from root pathogens. कि रूट के ऊपर जहाँ पे आगे पैथोजेंस नहीं लगना था, वहां पे पहले ही माइकोराइज लग गई होती हैं, ये फंजाई लग गई होती हैं, लिहाजा पैथोजन के लिए वहां पे जगह ही नहीं होती। So these are the benefits which plant gets. So these are the reasons or the mutual benefits which these have, due to which we call it as the mycorrhizal symbiosis. These are the benefits which the microbiont or the fungal partner gets, and these are the benefits which the plant partner gets from that association. And up to 80% of plants' phosphorus needs and 25% of its nitrogen is obtained via the fungus. So fungi पौधे की 80% तक फास्फोरस की रिक्वायरमेंट्स और 25% तक उसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं। ठीक है? सो वो इसकी 20% तक फिक्स्ड कार्बन ले लेता है, और ये 80% तक
पौधे की फास्फोरस की पर्टिकुलरली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करती हैं, और 25% तक नाइट्रोजन जो है पौधा लेता है वो इस फंजाई के थ्रू लेता है। More than 80% of all land plant species form symbiotic association with fungi. So आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से प्लांट्स में माइकोराइजी बनती है। So more than 80% of all land plants में जो भी लैंड प्लांट्स हैं उनके 80% से ज्यादा जो हैं वो फंजाई के साथ ये माइकोराइजल एसोसिएशन बना सकते हैं। And mycorrhizae usually have a proliferation of fungal biomass both in the roots and the soil. वो क्या करते हैं, वो फंजाई जो हैं, जो माइकोराइजी हैं, they can have, mycorrhizae is a symbiotic association between the plant and the fungi. So these can proliferate the fungi parts, the fungal parts that can proliferate, that can increase its biomass, not in the roots but also in the soil. ठीक है, सो ये प्लांट के अंदर रूट्स में भी अपना बायोमास इंक्रीज करता है, करती हैं, और सॉइल में भी इनकी बायोमास इंक्रीज होती है। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो आपको जस्ट मैंने just to give you some examples. The plant host, fungi, and important characteristics of major types of mycorrhizal association. So this is the mycorrhizal type: ectomycorrhizae, arbuscular mycorrhizae, ericaceous mycorrhizae, orchidaceous mycorrhizae, and actinomycorrhizae. ठीक है, so ये different types हैं mycorrhizae की, और ये hosts हैं जिनमें ये माइकोराइजी हो सकती हैं। सो ये वाली मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स में होती हैं, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म्स में, खास तौर पे वुडी प्लांट्स में भी हो सकती हैं। और ये फंजाई हैं, तो वो फंजाई कौन सी होती हैं जो इनमें एसोसिएशन बनाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म्स में हम कह रहे हैं मोस्टली बेसिडियोमाइसीट्स होती हैं, एंजियोस्पर्म्स में एस्कोमाइसीट्स होती हैं, और कुछ जाइगोमाइसीट्स भी होती हैं। और ये उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं जो वो बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आर्बस्कुलर माइकोराइजी आपने आमतौर पे सुना है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजी। सो ये जाइगोमाइसीट्स और ग्लोमेरुलोमाइकोटा बनाते हैं, और इनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं आर्बस्क्यूल्स और वेसिकल्स, जिनकी वजह से इसको वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजी वैम भी कहते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन कि कौन कौन सी माइक्रोराइजी, ये जो टाइप्स हैं इनको हम पढ़ते हैं एक एक करके। ये मैंने आपको साथ में बताया है कि कौन से वो होस्ट में होती हैं, और किस होस्ट में कौन सी फंजाई होती हैं, और उनका क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस हैं। So what are the mycorrhizal types and their features? One is the ectomycorrhizae. So the diagnostic feature of ectomycorrhizae is the presence of hyphae between the root cortical cells, producing a net-like structure termed as the Hartig net. ठीक है, सो याद रखें मैंने इसमें कहा है कि ये कहाँ पे ग्रो करती हैं, इसकी हाइफी बिटवीन द रूट कार्टिकल सेल्स, डिफरेंट रूट कार्टिकल सेल्स के दरमियान में ग्रो करती हैं, उनके अंदर नहीं एंटर होती हैं। ठीक है, और एक स्पेसिफिक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम हार्टिग नेट कहते हैं। मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगा। Many ectomycorrhizae also have a sheath or mantle tissue that may completely cover the absorbing root. एक शीट बना देती हैं या एक लेयर बना देती हैं जो रूट को पूरी तरह से कवर कर लेती है। The mantle can vary widely in thickness, color, and texture depending on the particular plant fungus combination. कौन सा प्लांट कौन सी फंजाई के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है,
इसकी मेंटल की थिकनेस, इसका कलर और इसकी टेक्सचर उस पर डिपेंड करती है। Dimension increases the surface area of absorption and often fine root morphology is affected. ठीक है, तो जाहिर है जब उसके ऊपर एक पूरी लेयर बन जाती है मेंटल की, एक फंजाई की, तो वो उसका एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। ठीक है, रूट की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। ये देखें, ये वो मेंटल है जो मैं कह रहा हूँ कि एक लेयर सी बन जाती है, और ये वो हार्टिंग नेट है जो कॉर्टिकल सेल्स के बिटवीन कॉर्टिकल सेल्स बनता है। ठीक है, ये तो यू कैन सी दिस हार्टिंग नेट। ठीक है, ये वेसिकल्स हैं जो कुछ में बनते हैं, आप अभी आगे जाके भी पढ़ेंगे जिनमें वेसिकल्स बनते हैं। ये वो वेसिकल्स अर्बस्क्यूल्स और वेसिकल्स स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये क्लेमेडोस्पोर्स हैं। ठीक है, सो actomycorrhizae are found on woody plants ranging from shrubs to forest trees. So जो एक्टोमाइकोराइजी हैं ये जनरली वुडी प्लांट्स में जो श्रब से लेके फॉरेस्ट ट्रीज तक हो सकते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, एक्टोमाइकोराइजी उनमें ज्यादा बनती है। एंड many of the host plants belong to the families. ये प्लांट फैमिलीज हैं जिनमें ये वाली एक्टोमाइकोराइजी मौजूद हो सकती हैं। हमने कहा वुडी प्लांट्स में श्रब्स टू फॉरेस्ट ट्रीज, कौन सी फैमिलीज में? ये वाली वो फैमिलीज हैं जिनमें ये एक्टोमाइकोराइजी मौजूद हो सकती हैं। And over 4,000 fungal species belonging primarily to the Basidiomycota and fewer to the Ascomycota are known to form ectomycorrhizae. So 4,000 स्पीशीज तक हैं जिनमें ज्यादातर बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा, कुछ बुक्स में ही आपको बेसिडियोमाइकोटा की बजाय बेसिडियोमाइसीड्स का लफ्ज मिलेगा, सिमिलरली एस्कोमाइकोटा की बजाय एस्कोमाइसीड्स का लफ्ज मिलेगा। सो बेसिडियोमाइकोटा या एस्कोमाइकोटा ज्यादा है, ज्यादातर प्राइमरीली बेसिडियोमाइकोटा होता है, और कुछ हैं जो एस्कोमाइकोटा भी होती हैं जो एक्टोमाइकोराइजी बनाती है। Many of these fungi produce mushrooms and puffballs from the forest floor. So ये जो फंजाई हैं ये इनमें से बहुत सारी जो हैं वो मशरूम्स और पफ बाल्स बनाते हैं। ये भी एक स्पेसिफिक टाइप होती है मशरूम टाइप, फॉरेस्ट में आपको आम मिलती है। Some fungi have narrow host range such as Boletus buticola on Butola species. कुछ जो हैं वो एक खास प्लांट ही पे बना सकती हैं, जैसे ये जो फंजाई है ये सिर्फ इन्हीं पे बना सकती हैं, whereas the others have a very broad range such as Physolithis tinctorius. कुछ फंजाई ऐसी हैं जो सिर्फ एक खास प्लांट स्पीशीज पे ही एक्टोमाइकोराइज डेवलप करती हैं, जबकि कुछ ऐसी हैं जो बहुत वाइड होस्ट रेंज रखती हैं, बहुत सारे होस्ट में ये सिम्बायोसिस डेवलप कर सकती हैं। देन कम्स, ये हमने एक्टोमाइकोराइजी की बात की, देन कम्स द अर्बस्कुलर माइकोराइजी। The diagnostic feature, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, the diagnostic feature of an arbuscular mycorrhizae is the development of a highly branched arbuscules within the root cortical cells. ये root cortical cells के दरमियान specific branch arbuscules बनाती हैं। ये special structure होती है जो बनती है, अभी मैंने आपको दिखाई दी। The fungus initially grows between cortical cells but soon penetrates the host cell wall and grows within the cell. So पहले तो ये सेल के दरमियान ग्रो करती है, लेकिन जल्द ही ये सेल की वॉल से पेनिट्रेट करके सेल के अंदर भी चली जाती है और वहां पे भी ग्रो करती है। The general term for all mycorrhizal types where the fungus grows within cortical cells is called endomycorrhizae. So अगर फंजाई रूट्स के जो सेल्स होते हैं, कॉर्टिकल सेल्स जो होते हैं, उनके बाहर ग्रो करे
between the cortical cells, then it is called as ectomycorrhizae. But if it enters into the root cell, into the cortex cells, then it is called as endomycorrhizae. The arbuscules are relatively short-lived, less than 15 days, and may be difficult to see in field collected samples. So मुश्किल से आपको नजर आते हैं. Other structures produced by some arbuscular mycorrhizal fungi include vesicles, auxiliary cells, and asexual spores. ठीक है, जो ये arbuscular mycorrhizae बनाती है. The fungi that form arbuscular mycorrhizae are classified in the order Glomales, phylum Zygomycota. ठीक है, so ये हैं जो arbuscular mycorrhizae बनाती हैं. The arbuscular mycorrhizae type of symbiosis is very common, as the fungi involved can colonize a vast range of both herbaceous and woody plants. एक्टोमाइकोराइजी में हमने कहा था कि वो सिर्फ वुडी प्लांट्स में होती हैं, लेकिन ये हर्बेशियस में भी हो सकती हैं और वुडी प्लांट्स में भी हो सकती हैं, सो इसलिए इनकी रेंज ज्यादा होती है. They indicate a general lack of specificity. इनमें कोई आम तौर पे इतनी खास स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, बहुत सारे प्लांट्स में ये कोलोनाइज कर सकती है. Then comes the third type, मैंने वो different types आपको दिखाई थी ना. So the third type of mycorrhizae is ericaceous mycorrhizae. What is ericaceous mycorrhizae? The term ericaceous is actually applied to mycorrhizal associations found on plants in the order Ericales. Ericales is a plant order. जो Ericales में plants आते हैं, उनमें अगर fungi association बनाए तो उसको हम ericaceous mycorrhizae कहते हैं. ठीक है, the hyphae in the root can penetrate cortical cells, so endomycorrhizal habit होती है. However, no arbuscules are found. अब इसमें और arbuscular में फर्क देख लें, वो भी पेनिट्रेट कर जाती है रूट सेल्स में, ये भी पेनिट्रेट कर जाती है, लेकिन उसमें हमने कहा था कि वो arbuscules बनाती है, इसमें arbuscules नहीं बनते. Three major forms of ericaceous mycorrhizae are ericoid, cell of the inner cortex become packed with fungal hyphae. ठीक है, इनर कॉर्टेक्स सेल्स में फंगल हाइफी पैक हो जाते हैं, और a loose welt of hyphae grows over the root surface, but a true mantle is not formed. खास लेयर नहीं बनती है, लेकिन लूज हाइफी ग्रो कर जाते हैं रूट सरफेस के ऊपर. And the ericoid mycorrhizae are found on plants such as Calluna, जिसको हीथर भी कहते हैं, एंड वैक्सीनियम, जिसको ब्लूबेरी कहते हैं. ठीक है, ये उनका टेक्निकल नेम है और ये कॉमन नेम है. देन द सेकंड टाइप इज arbutoid. Arbutoid क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एक्टोमाइकोराइजी एंड एंडोमाइकोराइजी आर फाउंड. इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, एक्टो के भी और एंडो के भी. And intercellular penetration can occur, a mantle forms, and a Hartig net is present. And these associations are found on Arbutus, Pacific madron, and Arctosiculos. This is beerberry. Then comes the monotropoid. The fungi colonize achlorophyllus, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, lacking chlorophyll plants in the monotropaceae family जो है, Indian pipes इसका कॉमन नेम दिया जाता है. इन प्लांट्स में ये वाली fungi ग्रो करती हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. And these produce Hartig net and mantle, and also form ectomycorrhizal associations with trees.
So this was about that ericaceous mycorrhizae. Then comes the orchidaceous mycorrhizae. Orchidaceous. They have a unique role in the life cycle of plants. Orchids typically have very small seeds. Orchid is a special plant, a flower plant. Orchids typically have a very small seed with little nutrient reserves. इसके सीड बहुत छोटे होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं. The plant become colonized shortly after germination, and the mycorrhizal fungus supplies carbon and vitamins to the developing embryo. So जो ही प्लांट सीड जर्मिनेट होता है, माइक्रोराइजेस पे कॉलोनाइज करती हैं और फिर उसको कार्बन और विटामिन प्रोवाइड करना शुरू कर देती हैं. The fungi participating in the symbiosis are pseudomycetes, similar to those involved in the decaying wood. जो decaying wood में जो wood decompose हो रही होती है, उसमें जो होते हैं ये वो होती है. In mature orchids, mycorrhizae also have role in nutrient uptake and translocation. ठीक है जी? So nutrient uptake और translocation में भी इसका रोल होता है. Then what are the fixed infections? Several fungi can colonize the roots of a single plant, but the type of mycorrhizae formed is usually uniform for a host. ठीक है? The fungi participating in the symbiosis are pseudomycetes, similar to those involved in the decaying wood. In mature orchids, mycorrhizae also have role in nutrient uptake and translocation. Already भी हम ये बात कर चुके हैं. In some cases, however, the host can support more than one type of mycorrhizal association. बाज़ का ऐसा भी होता है कि एक होस्ट एक से ज्यादा माइक्रोराइजल एसोसिएशन बना रहा होता है. फॉर एग्जांपल एल्डर्स प्लांट्स जो होती हैं या सैलिक्स विलोज होती हैं जो एंड पॉपुलस जो पॉपुलर होता है, दिस कैन हैव बोथ arbuscular mycorrhizal and ectomycorrhizal associations on the same plant. एक ही प्लांट के ऊपर दोनों किस्म की माइक्रोराइजल एसोसिएशन मौजूद हो सकती है. Some ericoid plants have also been shown to have occasional ectomycorrhizal and arbuscular mycorrhizal colonization. So बाज़ का उनमें भी ये arbuscular और ectomycorrhizal colonization हो जाती है. Now mycorrhizae may stimulate root colonization by selected biocontrol agents. कुछ बायोकंट्रोल एजेंट्स जो हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सर्टेन डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, दे कैन स्टिमुलेट द रूट कॉलोनाइजेशन. माइकोराइजी कैन स्टिमुलेट रूट कॉलोनाइजेशन बाय सिलेक्टेड बायोकंट्रोल एजेंट्स. आप ये भी कर सकते हैं कि किसी डिजीज के अगेंस्ट आप कोई बायोकंट्रोल एजेंट यूज करना चाहती हैं, तो आप माइकोराइजी को यूज कर सकती हैं, जो कि उस बायोकंट्रोल एजेंट को, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को रूट पे कॉलोनाइज करने में हेल्प कर सकती हैं ताकि वो डिजीज को कंट्रोल कर सके. ठीक है? मैकेनिज्म्स ऑफ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ माइकोराइजल कॉलोनाइजेशन ऑन रूट पैथोजेंस कैसे करती हैं? माइकोराइजल बायोकंट्रोल एजेंट्स को कैसे स्टिमुलेट करती हैं? व्हाट इज द मैकेनिज्म? ठीक है? So mechanism of direct effect of mycorrhizal colonization on root pathogens include number 1 development of a mechanical barrier. मैंने शुरू में बात की थी, वो मैकेनिकल बैरियर का काम करती हैं कि रूट पे जहां पे जाके पैथोजन ने लगना था वहां पे पहले ये फंजाई लग जाती हैं, तो उनको जगह ही नहीं मिलती. Especially the mantle of the ectomycorrhizae to resist infection by pathogens. वहां पे वो mantle grow कर जाती है, so pathogens वहां पे जाके नहीं लग सकते. Then by production of antibiotics, कुछ mycorrhizae antibiotics produce करती हैं. वो antibiotics जो हैं वो उस पैथोजन को वहां से suppress कर देते हैं. और third, competition for nutrients in the rhizosphere.
अब पैथोजेंस को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो राइजोस्फीयर में माइक्रोराइजी पैथोजन के साथ compete करती हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने देती, खासतौर पे ये जो सिड्रोफोर्स बनते हैं, ये साइड्रोफोर्स फिर उसको खासतौर पे आयरन नहीं मिलने देते, जिसकी वजह से पैथोजन आयरन डेफिशिएंसी की वजह से मर जाता है। सो दिस इज हाउ द फंजाई कैन हेल्प इन बायो कंट्रोल, ठीक है, in you can say mycorrhizal colonization can help the plant in biocontrol. Okay, you can use certain biocontrol agents by using fungi. And induction of generalization host defense mechanism. ये पौधे में जो उसका अपना डिफेंस का मैकेनिज्म है वो भी इंड्यूस कर सकती हैं कि उसमें ऐसी एबिलिटी प्रोड्यूस कर देती हैं माइक्रोराइजी पौधे में कि वो खुद ही ये डिफेंस का मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर लेता है। Then finally, what is the function of mycorrhizae in the ecosystem? So mycorrhizae have important multifunctional roles in a natural ecosystem, such as क्या है? Uptake of poorly mobile nutrients. जो कम मोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे फास्फोरस है, उनकी पौधे में अपटेक में ये हेल्प करते हैं। एक कैसे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वो एरिया जो रूट्स ने एक्सप्लोर करना होता है उसको बढ़ा देती हैं। देन एनहांस ड्राउट टॉलरेंस, ज्यादा एरिया को एक्सप्लोर करके ज्यादा मॉइस्चर ले सकती हैं, लिहाजा ड्राउट कंडीशंस में रूट्स ज्यादा दूर तक चले जाती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंजाई, लिहाजा वो ज्यादा एरिया से दूर दूर से भी मॉइस्चर ले आती हैं। सो एनहांस ड्राउट टॉलरेंस, सुप्रेस पैथोजेंस, अभी हमने मैकेनिज्म पढ़े हैं कि ये पैथोजेंस को कैसे सुप्रेस करती हैं। Then contribute to soil quality by channeling carbon to the soil. So ये खुद भी जब वो फंजाई वहां पे हैं तो ये पौधे का आपने अभी पढ़ा था कि ये अप टू 20% ऑफ द फिक्स्ड कार्बन जो है वो ले लेती हैं। तो वो जो कार्बन है वो जब ये फंजाई डेड होती हैं तो वो कार्बन सॉइल में ऐड होती रहती है। Important determinants of plant community structure and plant succession, इसमें भी इनका बड़ा रोल है कि इस वक्त कौन से प्लांट्स ने ग्रो करने हैं, उनके बाद कौन से प्लांट्स ने ग्रो करने हैं, उनके बाद कौन से प्लांट्स ने ग्रो करने हैं, ठीक है, इसमें ये फंजाई बहुत रोल प्ले करती हैं। Now finally, what are the problems and potential for inoculum production? जैसे हमने पीजीपीआर जब बायो फर्टिलाइजर का चैप्टर पढ़ा था उस वक्त भी मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था, सो अभी ये ऑलमोस्ट रेपिटेशन होगी इसकी। उस वक्त मैंने स्पेशल एंड पे जाके कहा था कि जो वैम के बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें क्या इश्यूज होते हैं। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियल फॉर इनोकुलम प्रोडक्शन। अगर माइक्रोराइजी के इतने फायदे हैं तो हम इसका इनोकुलम बना के उसको कमर्शियल क्यों नहीं करते? कमर्शियल हो रहा है, ये बहुत सारे मुल्कों में है ये कमर्शियल, हमारे यहाँ भी शायद इक्का दुक्का है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और पोटेंशियल क्या है? In situations where native mycorrhizal inoculum potential is low or ineffective, considerations should be given to introducing appropriate fungi into the plant production system. So जहाँ पे कम है तो वहाँ पे हमें appropriate fungi सिस्टम में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। आपने देखा, हमने पढ़ा, मैंने आपको एक पूरा टेबल दिया कि किस टाइप की माइक्रोराइज में किस टाइप की फंजाई हैं। सो जहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव ना हो वहाँ पे हमें चाहिए कि हम इस किस्म की फंजाई जो वहाँ पे ज़रूरी हैं वो इंट्रोड्यूस करें। सो उसके लिए फिर हमें इनोकुलम बनाना पड़ेगा। सो द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी इनोकुलेशन प्रोग्राम इज टू ऑब्टेन एन आइसोलेट दैट इज। तो फिर हमें क्या चाहिए? पहला काम, अगर हम जैसे बैक्टीरिया में हम कहते हैं जी कि ये यूजफुल बैक्टीरिया यहाँ पे ऐड करें, इसका इनोकुलम डालें वहां पे, तो वो डालने के लिए हम फिर उसको, हमने कहा था लिक्विड कल्चर बनाते हैं या कैरियर बेस्ड कल्चर बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, पहले उसको आइसोलेट करते थे, सॉइल में से आइसोलेट करके लैब में ग्रो करते थे।
मल्टीप्लाई करके फिर हम सॉइल में डालते थे। सो अगर हमने फंजाई का, हमने इसमें कहा कि फंजाई सॉइल में, डिजायर्ड फंजाई सॉइल में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, तो वो फंजाई जो सॉइल में डालनी है आपने, जो इनोकुलेशन प्रोग्राम है आपका, दैट टू ऑब्टेन एन आइसोलेट, क्या होना चाहिए, वो जो आइसोलेट है दैट शुड बी इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव का क्या मतलब है? शुड बी एबल टू पेनिट्रेट एंड स्प्रेड इन द रूट, कि वो रूट पे पेनिट्रेट भी कर सके और उसके ऊपर फैल भी सके, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए। इट शुड बी इन्फेक्टिव एंड इफेक्टिव। It should be able to enhance growth or stress tolerance of the host. So हमें ऐसा इनोकुलम चाहिए जो इन्फेक्टिव भी हो और इफेक्टिव भी हो। Individual isolates of mycorrhizal fungi vary widely in these properties. So fungi के जो ये isolates हैं वो इन दोनों एबिलिटीज में वाइडली वेरी करते हैं, बहुत वेरिएशन है, कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है, कोई बहुत ही कम इन्फेक्टिव है। So screening trials are important to select isolates that will perform successfully. So फिर हमें पहले उसको फील्ड में लेके जाने से पहले हमें स्क्रीनिंग ट्रायल्स करने चाहिए, ताकि हम ऐसे आइसोलेट्स सिलेक्ट कर लें जो फील्ड में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकें। स्क्रीनिंग अंडर एक्चुअल क्रॉपिंग कंडीशंस इज द बेस्ट। अब बेस्ट कंडीशन क्या है कि आप नेचुरल कंडीशंस में उसकी स्क्रीनिंग करें, बिकॉज इंडिजिनस फंजाई, पैथोजेंस एंड केमिकल एंड फिजिकल सॉइल प्रॉपर्टीज विल इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। ये हम बैक्टीरिया में भी यही बात करते हैं कि आपको नेचुरल कंडीशंस में अल्टीमेटली टेस्ट करना होता है उसको कमर्शियल एप्लीकेशन से पहले, क्योंकि जो सॉइल में मौजूद फंजाई है पहले से, जो उसमें पैथोजेंस मौजूद हैं, सॉइल की जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी इसकी एबिलिटी को, इसकी कैरेक्टर्स को, इसकी एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑप्शन इज टू स्क्रीन अंडर एक्चुअल क्रॉपिंग कंडीशंस। Many ectomycorrhizal fungi can be cultured on artificial media. बहुत सारी ectomycorrhizal fungi हम artificial media पे ग्रो कर सकते हैं, लैब में जैसे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। Therefore, isolates of ectomycorrhizal fungi can be obtained by placing surface disinfected portions of sporocarps or mycorrhizal short roots on the agar medium. सो आप इसके स्पोर्स या ऐसी रूट्स जिन पे माइक्रोराइजी ग्रो की हुई हों उनको एगर मीडियम में डालें, ग्रो करें, तो ये वहां पे ग्रो कर सकती है। ठीक है। द रिजल्टिंग फंगल बायोमास, वो जो फंजाई ग्रो कर जाएंगे फिर, कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज इनोकुलम, बट फॉर ईज ऑफ द यूज इनोकुलम ऑफन कंसिस्ट्स ऑफ द फंगल मटेरियल mixed with a carrier or bulking material such as peat. So जैसे बैक्टीरिया में हम करते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर किस कैरियर मटेरियल में डालते हैं, इसी तरह से इसमें भी इसको भी किसी कैरियर मटेरियल में डाला जाता है, पीट में या बास का सैंड में मिक्स कर लेते हैं, पर किसी कैरियर मटेरियल में इसको डालना पड़ेगा हमें। Obtaining isolates of arbuscular mycorrhizal fungi is more difficult. ये मुश्किल है। जो arbuscular mycorrhizal fungi, it is difficult because they will not grow apart from their host. क्योंकि अगर इनका होस्ट वहां पे मौजूद है नहीं है तो ये ग्रो नहीं करती हैं। आप इनको लैब में ग्रो नहीं कर सकेंगे, इनके साथ इनका होस्ट भी आपको ग्रो करना पड़ेगा, तब आप इनको ग्रो कर सकेंगे। Spores can be sieved out of soil, surface disinfected, and used to initiate pot cultures on a susceptible host plant in sterile soil or an artificial plant growth medium. ठीक है। सो इसमें आपको ये करना पड़ता है, आप सॉइल में से स्पोर्स लेते हैं, उसके बाद आप पॉट्स में वो स्पोर्स भी डालते हैं, आप साथ में पौधा भी ग्रो करते हैं, तो वो फिर मल्टीप्लाई करती है, और वहां से फिर जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो उन स्पोर्स को आप दोबारा से अलग कर लेते हैं। ठीक है, और उसको फिर आप यूज कर सकते हैं।
The goal of inoculation is to introduce propagules of selected mycorrhizal fungi into the rhizosphere of target plant. So मकसद यही होता है inoculation का कि हम वो selected fungi rhizosphere में introduce कर दें जो target plant में जाके infection कर सकें और वहाँ पे symbiosis हो सके. The most common method is to place inoculum below the seed or seedling prior to planting. ठीक है, या सीडलिंग को लगा दें या सीड के नीचे रख दें इसको. And that's it for fungi or for mycorrhizae. And with this we finish the my portion of 704. Now Dr. Naveed has to cover only one or two topics. One is the plant growth regulators or phytohormones, and one perhaps is the microbial genetics. These are the two important topics that he will cover, right? आप लोग अपने contents देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से topic आपके रह गए हैं. So he can now better take you. So we had a very good time. I did my best to make the things simpler and to clarify everything to you people. And on the very first day, I advised you to go through the material whatsoever we have covered, because at that time I said that if you do not keep on studying regularly, it will be difficult for you to then cram those terms, technical terms at the end while there will be the exam time. So I hope I did my best to make the things clear. And because there was no direct interaction, so I have no hesitation to admit that had there been physical interaction, it would have been even much more easier for you to understand the things. But still, I hope that you were able to understand. Still, if somebody feels some deficiency, he can go to the YouTube and can download that particular chapter from there, where we have uploaded all these chapters, the recordings of all these chapters. You can download from there and you can see those once again, twice, many times as you want. And this is a news for you that also that today we are going to have Dean's Committee where we will decide today the mode of exams, because as you know, the government is going to open the universities from February. So what will be the mode of exams? This will be decided today. So it was a nice time spending a semester, although virtually, but spending a semester with you people. I hope everybody enjoyed this. And if anybody got hurt with some of my, although there was no physical interaction, but still if he got hurt or he could not understand, if you have the opportunity, if you like, you can come individually to my office and discuss physically also, right? But please don't come in groups because it is the advice of the government, right? And now I took this class off the record, as I told you. So now practically or theoretically, your class in charge and your class teacher is Dr. Naveed. He will be evaluating you. He will be both for theory as well as for practical. So he will be evaluating you and preparing the result and submitting to the controller office whatsoever the mode of examination will be. Now, if you want to say something or ask something, you are welcome. You can unmute the mic and say if you want to say something. Okay, if nothing to say, then okay, Allah Hafiz, see you inshallah in PhD. Those who will come in PhD class, we will see them in PhD. I have a course in PhD, or those who will come to my lab as research students. So thank you very much. Take care of yourselves Thank you so much, sir. and your families. Thank you very much. Okay. Thank you so much, sir. Okay, sir. Thank you so much. Allah Hafiz. Okay, sir. Thank you. Allah
और रुको